Okay, I'll share the screen. Now today's my topic is exercise. Can you see the screen? Okay. So we can see. Now I'll mute you all so that no disturbance in class. Got it? Now exercise. This is the index. Exercise, public health significance. Exercise on the basis of metabolic effects. Types of exercises. Concept, frequency, duration, intensity. Yoga, general characteristics of yogic practice, beneficial effect of yoga on body, types of asanas, yogas versus conventional exercises, benefits of physical activity and exercises, fit India. These are the topic which will cover. And what is the effect of exercise on your body? You can be healthy because of exercise. If you follow this thing, you will be healthy. The main important thing, 1 minute. अरे यार फर्स्ट स्टार्टिंग से 1 सेकेंड रुको. Today's topic exercise. I'll do it. Second यही था. Components for healthy lifestyle. मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज जब काम करेगी तब आपके पेट में शक्ति होगी ना. आप कुछ खाओगे पियोगे तभी आप तंदुरुस्त रहोगे, है ना. तो आप अच्छा खाना खाइए, अच्छा फूड लीजिए. फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ. कंपोनेंट्स फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, main important is food. If you take rich food doesn't mean it is in the hotel or restaurant. That is not a rich food. Rich food is what you take in your plate daily life. That is nutritious food. Nutritious foods mean the food contains carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, dairy products, है ना. Everything it should contain in your daily life food. So that is component for the healthy lifestyle. First is food, second is exercise, third is sleep, and fourth is stress management. We have learned about stress management. I've told you in the before classes what is stress and what is how can you manage your stress. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. Now exercise. Exercise is any bodily activity that enhances or maintains physical fitness, overall health and wellness. हमारी overall health जो है, physical fitness जो है, वो हमारी exercise से अच्छी होती है. Bodily activity हम जो करना चाहते हैं, हम सारा दिन स्वस्थ और अच्छा मस्त रह सकते हैं अगर हम रोज सुबह से exercise करें. If you tune your body, exercise means tuning your body. आपने उसमें सुबह से उठ के एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि दिन भर आप तरोताजा बने रहें. इट इज परफॉर्म फॉर वेरियस रीजंस. कौन से रीजंस के लिए हम परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइजेस? इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारी अब जो ग्रोथ है वो बढ़ना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए बॉडी में. प्रिवेंटिंग एजिंग. आप अगर इसको करते रहेंगे तो आप एज वाइज बड़े नहीं लगेंगे, वरना नहीं तो 20 साल में आप 40 के लगोगे, और जो हेल्दी होते हैं वो 40 में भी 20 के लगते हैं. ठीक है, तो अगर आपको अपने एज को बचा के रखना है, आप 20 के सदा दिखना चाहते हो, तो आपने एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देने चाहिए. स्ट्रेंथन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ताकि आप में शक्ति रहे. वेट लॉस करने के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप स्लिम ट्रिम बने रहें हमेशा. एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, और हमें स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. Now public health significance of physical activity. What is public health significance? इसमें सारे public का क्या significance है, क्या इसका role है. ठीक है. Physical inactivity has been identified as fourth leading factor for global mortality. That is global mortality मतलब सारे विश्व में, सारे दुनिया में जो लोग नहीं करते हैं उनकी मौत, फेटल, जल्दी जल्दी मौत आ जाती है. ग्लोबल मॉर्टेलिटी मतलब जो एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस पावर अच्छा होता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है. अगर जो नहीं करते हैं, फिजिकल इनएक्टिव हैं, एक जगह बैठे रहेंगे ऐसे लेजी, कुछ नहीं करने वाले, तो वो लोग की मौत के लिए जल्दी आप खुद जिम्मेदार रहते हैं अपनी मौत के लिए. ठीक है. Global health is being influenced by population, aging, rapid unplanned urbanization and globalization, all of which results unhealthy environment and behavior. क्यों हमारे यहाँ अनहेल्दी एनवायरमेंट और बिहेवियर हो रहा है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, चारों तरफ भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा एजिंग, मतलब सारे लोग एज बढ़ते जा रहे हैं,
60% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबाउट 60% ऐसे हमारे। तो रैपिड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, कहीं भी बिल्डिंग्स पूरे खड़े होते जा रही है, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है, सारा ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ऑल ऑफ विच रिजल्ट्स अनहेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब ग्रीनरी कटते जा रही है और बिल्डिंग बिल्डिंग बनते जा रहे हैं, तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश लाइफ के लिए आपको वो सब चीजें मिलती नहीं है, सारा जगह पोल्यूशन है। तो ये सारी चीजों से अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, और बिहेवियर यही, मतलब आप लोग भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना, ऐसे एनवायरनमेंट में रह के। As a result, the growing prevalence of NCDs is affecting the lower and the middle income countries. और इसका कारण जो है, ये हम जैसे जो लोग होते हैं, उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। It has been shown that participation in regular physical activity reduces the risk of coronary heart disease, stroke, diabetes, hypertension, breast cancer and depression. आप डेली अगर एक्सरसाइज करते हैं तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। जो हार्ट अटैक वगैरह है, ये स्ट्रोक है, झटका लग जाता है, शॉक हो जाता है, डायबिटीज आती है, हाइपरटेंशन होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, डिप्रेशन होता है, जो डेली फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं उन ये बीमारियों से वो बच जाते हैं, ठीक है। एडिशनली फिजिकल एक्टिविटी इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड दिस विल डेफिनेटली इंप्रूव योर हेल्थ। हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो एक्सरसाइजेस बेसिस ऑन मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। मेटाबॉलिक इफेक्ट मतलब हमारे बॉडी में क्या मेटाबॉलिज्म होता है एक्सरसाइज करने से। तो aerobic exercise is any physical activity that uses large muscle groups and causes the body to use more oxygen than it would while resting. आप जैसे सोते रहते हो तो आपकी बॉडी लेजी पड़ी रहती है, आपके पास में वो सांस भी आपकी धीरे धीरे चलते रहती है ना। आप जोर से, आप जैसे इनहेल ब्रीथ करते हो जोर से, वो आप इनहेल नहीं कर सकते हो आराम से, फास्ट ब्रीदिंग जो होती है। और जब आप एक्टिव चलते हो या दौड़ते हो या कोई एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी ज्यादा जोर से ब्रीथ करती है और ऑक्सीजन ज्यादा लेती है ना। तो इट टेक्स ऑक्सीजन एट दैट टाइम। द गोल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज इज टू इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। हम जो दौड़ते हैं चलते हैं, ये एरोबिक एक्सरसाइज मतलब आप खुले में जब दौड़ते हैं, खुले में ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने को एरोबिक कहते हैं। नॉन एरोबिक मतलब घर में रह के बैठ के करना, और एरोबिक मतलब खुली हवा में गार्डन में जाके फ्रेश ऑक्सीजन लेना, वहां दौड़ना, वहां कूदना, वहां रस्सी खेलना, ये सारी चीजें। So examples of aerobic exercises including running, cycling, swimming, brisk walking, skipping rope, rowing, hiking, playing tennis, continuously training. तो ये सारी चीजें आपके एरोबिक एक्सरसाइज है, जिससे आपको एरोबिक मतलब ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए ज्यादा मात्रा में, तो आपके लंग्स अच्छे वो होंगे और हेल्दी रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो एरोबिक एक्सरसाइज ऑन द बेस ऑफ, हाँ, ये एरोबिक एक्सरसाइजेज एंड एनारोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइजेज कैन कॉज सेवरल सेंट्रल कार्डियोवास्कुलर एडेप्टेशंस इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम SV and maximal aerobic capacity as well as decrease in resting heart rate. पता नहीं कौन पापा आ गए? हाँ कितना आइए सही बता कुट्टी बस दी चल ये अपने किस टाइम पे चला। Anaerobic exercises include muscular hypertrophy and increase in the physiological cross-sectional area. PCA से ये फिजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये लिखा, ऑफ मसल्स एंड इंक्रीज इन न्यूरल ड्राइव विच लीड टू इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ। आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ भी अच्छे होते हैं इससे, एरोबिक एक्सरसाइजेस से ये सारी चीजें, आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है सब चीजों के, मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट, मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजम्पशन हो जाता है उससे, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है उससे, ठीक है। एनारोबिक एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथ बढ़ाती है, पीसीए न्यूरल ड्राइव, ये आप ये जो स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाते हैं ना, जो आप जिम जाके करते हैं, दैट इज एनारोबिक एक्सरसाइजेस। और एरोबिक एक्सरसाइजेस जो आप खुले हवा में करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, the mode of participation in physical activity, the types are aerobic, strength, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। एरोबिक मतलब जो खुले में करते हैं, स्ट्रेंथ मतलब जो आप जिम में करते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइजेस, और बैलेंसिंग मतलब अभी आएगा इसमें बैलेंस करना, अपने आप को बैलेंस करना 2 फीट पे 1 फीट पे, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। नाउ एरोबिक एक्सरसाइजेस व्हिच नीड्स अप योर हार्ट, speeds up your heart rate, and breathing is important for many body functions. ठीक है, many body functions. Aerobic exercises helps condition your heart and lungs, get enough blood to your muscles to help them work efficiently. आप जितना एक्सरसाइज करते हो, आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से, सारे पार्ट ऑफ द बॉडी यू गेट द ब्लड सारे, और आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छे से अंदर ब्रीथ हो जाता है, अच्छे से ऑक्सीजन, यू कैन टेक मोर ऑक्सीजन इनसाइड योर बॉडी while doing aerobic exercises.
एरोबिक एक्सरसाइजेस आल्सो हेल्प्स रिलैक्स लोअर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा उससे, बर्न बॉडी फैट, आपका बॉडी फैट बर्न हो जाएगा, लोअर ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर किसी को है तो इट विल बी लोअर्ड, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन अगर अंदर है, इन्फ्लेमेशन है तो आपका कम हो जाएगा, बूस्ट मूड, मूड आपको चेंज कर देगा, आपका अच्छा मूड कर देगा, एंड रेज गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, आपके एक्सरसाइज करने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला आपके बॉडी में आ जाता है, जिससे आप स्वस्थ होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके लिए नुकसानदायक होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल होता है जो आपके लिए फायदेमंद होता है, तो ये बढ़ जाता है उससे। combined with weight loss and its lower bad LDL cholesterol too, और ये लोअर कर देता है बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है उसको कम कर देता है, ठीक है। नाउ एरोबिक एक्सरसाइज के बाद में स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस जो आप लोग जिम में करते हैं, it will likely include body weight exercises like push-ups, lunges, and exercise involving resistance from a weight band or a weight machine. जितने भी आप machines use करते हैं ये सारी चीजों के लिए, that is strength exercise will strengthen your muscles. आपके पैक बनाते हैं, 6 पैक 4 पैक्स जो आप बना सकते हैं बॉडी जाके, वो भी जिम में आप कर सकते हैं। Strengthening your muscles not only makes you stronger but also stimulates bone growth, लोअर्स ब्लड शुगर, असिस्ट द विथ वेट कंट्रोल, आपका वेट कंट्रोल भी होता है उससे, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, आपकी मसल स्ट्रांग होती हैं, इंप्रूव्स बैलेंस एंड पोस्चर, आपका पोस्चर ठीक हो जाता है, आप सही तरीके से खड़े रहते हैं, सही तरीके से बैठते हैं, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, आप अच्छे दिखते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, एंड पेन इन द लोअर बैक एंड जॉइंट्स, अगर पेन आपको है तो ये एक्सरसाइजेस करने से जिम वगैरह की ये भी आपकी ठीक हो जाती है। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अपने आप को स्ट्रेचिंग करना, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस स्ट्रेच एंड lengthens muscles, activities such as stretching helps to improve joint flexibility and keeps muscles limber. जितने भी मसल्स हैं आपके, आपके स्ट्रेचिंग करने से पूरे मसल्स खुल जाते हैं, इजी हो जाते हैं, आप स्ट्रेच कर सकते हैं। द गोल इज टू improve the range of motion which can reduce the change of injury. आप जितना अपने मसल्स को मूव करते हैं डेली, सुबह उठ के सारे बॉडी के पार्ट्स अपने एक्सरसाइज करने चाहिए, मसल्स करने चाहिए, पूरे स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए, और इससे क्या होता है आपके जो मोशंस, आपके जितने मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, उससे आपकी जो चांस ऑफ इंजरी है वो कम हो जाती है। नहीं तो क्या होता है कई बार आपके हाथ पैर ऐसे स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, और झटके से कभी कोई ने यहाँ से वहां हिला दिया तो आपका हड्डी टूट गई, या कुछ माइनर जॉइंट्स में पेन हो गया, या कुछ स्ट्रेन हो गया, ऐसा हो जाता है स्ट्रेन। कुशन एंड नरिश द जॉइंट्स एंड सरफेस ऑफ द जॉइंट्स, जितने भी हमारे जॉइंट्स है ये पूरे कुशंस जो उसमें जिससे मूव होते हैं जॉइंट्स, वो सारे अच्छे से नरिश हो जाते हैं मूवमेंट करने से, इस टाइप से स्ट्रेचिंग करने से। इंक्रीजिंग मस्कुलर इलास्टिसिटी ऑफ द जॉइंट्स, रेंज ऑफ मोबिलिटी इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, और इससे हमारे जॉइंट्स के मसल जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मसल्स इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, और जॉइंट्स का मूवमेंट फ्रीक्वेंट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। स्ट्रेचिंग द मसल्स रूटीनली मेक्स देम लॉन्गर एंड मोर फ्लेक्सिबल। इट इज अप टू यू विच यू वांट, यू कैन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आल्सो यू कैन डू। द नेक्स्ट इज बैलेंस एक्सरसाइज। बैलेंस में आपको इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है, यू कैन बैलेंस ऑन 1 foot, doing seeing the posture, you can do it like this also, balancing. Now balance exercises improving your balance makes you feel steadier on your feet and helps prevent fall. आप कभी कभी हमें एक स्टेप पे खड़े रहना होता है, हमको बाहर गिर नहीं पाते, अगर अपने आप को बैलेंस करते हैं तो हम कभी भी एक पैर पे भी खड़े रहने की ताकत रख सकते हैं। It is especially important as we get older when the systems that helps us maintain balance, आप जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे आपको ये बैलेंस एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करते हैं, वरना लोग खड़े नहीं हो पाते बड़े होने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद में शिवरिंग होती है, हाथ पैरों में शक्ति नहीं रहती, कांपते हैं, तो इसलिए बैलेंस करने से आप अपने बॉडी को स्टिफ कर सकते, अच्छा कर सकते हो बैलेंस में। टिपिकल बैलेंस एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग स्टैंडिंग ऑन 1 foot और वॉकिंग हील टू टो with your eyes open or closed. The physical therapist may also have focus on joints flexibility, walking on uneven surfaces, and strengthening leg muscles with exercises such as squats and leg lifts. या पैर ऊपर करना, बैलेंस करना, 1 foot पे रहना, 2 steps है, एक स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे कर करके आप उसको बैलेंस कर सकते, मतलब कैसे भी करके अपने अपने बॉडी को बैलेंस करना चाहिए। यू कैन डू दिस ऑल्सो। Concept of frequency, duration, intensity. Duration, the length of time in which an activity or exercise is performed. Duration is generally expressed in minutes. आप कैसे कर सकते हो, कितने ड्यूरेशन के लिए, जैसे हम कहते हैं ना 1 से 8 तक गिनते, फिर 8 से फिर 1 तक गिनते, तो इस तरीके से आप 16 बार करते कोई भी एक्सरसाइज के, उसके लिए ड्यूरेशन होता है, हाउ मच टाइम यू डू।
आप कोई एक्सरसाइज करने के लिए जिम में आप जाते हैं तो आपको बताया जाता है इतने पुशअप करो, स्टार्टिंग एकदम से स्टार्टिंग में आपको 1000 नहीं बोलने लगता, आपको धीरे धीरे पुशअप बढ़ाते हैं, धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ाते हैं, ट्रेडमिल वगैरह आप करते हैं या स्ट्रॉन्ग जो भी आप करते हैं उसके लिए टाइम ड्यूरेशन होता है, हाउ लॉन्ग यू कैन डू, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन यू कैन डू, कितने बार आप कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार आप करते हैं, 2 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, रोज करते हैं, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्सरसाइज और एक्टिविटीज परफॉर्म, फ्रीक्वेंसी इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन सेशंस, एपिसोड्स और बाउट्स, ये इसके आप जो भी करें अंडर गाइडेंस करें। आप आजकल नेट पे भी बहुत कुछ मिलता है, सारे लोग सिखाते हैं, बताते हैं, बिना किसी गुरु के या बिना किसी के बताए या बिना किसी चीज को देखे आप कोई चीज मत करिए, नहीं तो आपको स्प्रेन हो जाए, हम अचानक से कुछ चीज स्टार्ट कर देंगे तो तकलीफ हो जाती है, तो आप देख के करिए। इंटेंसिटी, हाउ हार्ड अ पर्सन वर्क्स टू डू द एक्टिविटी, इंटेंसिटी रिफर्स टू द रेट एट विच द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म और द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और एक्सरसाइज, ये इंटेंसिटी कितना हार्डली आप कर सकते हो, नहीं तो हम बस जिम ज्वाइन करते हैं, एक दिन जाएंगे दूसरे दिन से सो गए, बहुत थक गए, आज ये दुख गया वो दुख गया, यहाँ दुख रहा वहां दुख रहा, हम नहीं जा रहे, एक दिन उठा के आ गए बस हो गया, दूसरे दिन से 1 हफ्ता कर लिया उसके बाद खत्म। अगर आपने मेंबरशिप ली है तो आप साल भर जाइए, आप आराम से उसको रेगुलरली फॉलो करिए, कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो, आप एरोबिक करते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक चालू किया आपने, जो भी करें तो आप डेली कर ले, उसको रेगुलराइज करोगे तभी आपको काम आएगा, वरना नहीं होगा, उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ। Continue, ठीक है। measuring level of intensity, out of the 3 components of training, measuring the duration and frequency is easy, measuring the different level of intensity how gets shrouded with confusion. The 2 types of guidelines to measure this intensity are followed. Measuring exercise intensity on basis of heart rate is based on maximum permissible heart rate, ये आपको जो भी कहते हैं ना, आप अगर कोई बड़े हैं बुजुर्ग हैं तो उनको भी हार्ट रेट वगैरह अपना पहले चेकअप करा लेना चाहिए, उनके हार्ट बीट्स कितनी, हार्ट रेट कहते हैं, कौन से एक्सरसाइजेस उन्हें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके हिसाब से द MXPHR इज कैलकुलेटेड, ये मैक्सिमम परमिशिबल हार्ट रेट, this is MXPHR is calculated as 220, that is my age in years, इसको इससे कैलकुलेट करते हैं आपका एज कितना है, कितने साल के आप हो, फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज 50, 50 साल का कोई बंदा है, द MXPHR विल बी 170 ये BPM, सो द इंडिविजुअल मस्ट नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ PHR ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ये हार्ट बीट्स रेट आपका बढ़ना नहीं चाहिए एक्सरसाइज करते समय, वो परेशानी में ना आ जाए अगर उसको, तो इसलिए अपनी चेकिंग करा लेना चाहिए डॉक्टर से कि आपका कितना है, या वहां पे जो आप जिम जाते हो वहां से भी उनसे चेक करा सकते हैं अगर वो अच्छे वहां पे ट्रेनर अच्छा है तो। इफ अ पर्सन इज एक्सरसाइजिंग 50 to 60% of the MXPHR, it is taken low intensity, exercises 60 to 70% is mild intensity, 70 to 80% will be moderate exercise, 80 to 90% and 90 to 100 are taken severe intensity and very severe intensity, ठीक है। आप कितने इससे कर रहे हो ये आपके लिए देखना है, आप कितना कर सकते हो उसके हिसाब से आप उसको अपना शेड्यूल करिए अपना। Measuring exercises in intensity using metabolic equivalents. Recently, the concept of METS are increasingly used to prescribe the level of exercises for individual. कितने exercises किसने कैसे करने चाहिए, ये सारी चीजें आजकल पूरी हो गई हैं, मतलब ये METS मतलब measuring exercises intensity. Measuring exercises intensity is full form of METS. मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स आपका उसके हिसाब से ये सेट की जाती है। 1 METS इज इक्वल टू लेवल एट विच अ पर्सन विल स्पेंड 1 किलो कैलोरी एनर्जी पर किलो बॉडी वेट पर आवर एंड दिस लेवल यूजुअली कोरेस्पॉन्ड टू द रेस्टिंग स्टेज। आप 1 घंटे में कितना अपना कैलोरी बर्न कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए यूजफुल है, ये सारी चीज उसमें बताई जाती हैं। और ये जो परफेक्ट ट्रेनर होते हैं, जो गाइडेंस होते हैं, उनसे लेके आपने ये सब चीजें करनी चाहिए। 10 अ पर्सन वेट 70 kgs एट रेस्ट, दैट इज एक्टिविटी ऑफ लेवल 1, Matt will spend 70 kilocalories per hour, while the same person exercising at the level of 6, Matt will spend 6 multiplied by 70, that is 420 kilocalories in 1 hour. तो ये डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट कितना है और उसके हिसाब से आपने कितने एक्सरसाइजेस करनी है और कितने आपका एनर्जी आप उसमें बर्न करोगे आप कैलोरीज उसके साथ में। Mats have dual advantages in that a single value gives indication of both amount of energy expenditure and intensity of exercises. Calories burn, ये आपको देखिए मैंने चार्ट इसमें डाल दिया है। 1 per hour of aerobic exercise, 1 घंटे में वॉकिंग में आपका 300 से 400 कैलोरीज कम होती है, रनिंग में 600 कैलोरीज पर आवर कम होती है,
साइकिलिंग में 600 कैलोरीज पर आवर कम होता है आपका, स्विमिंग में 600 कैलोरीज, रोइंग आप ये जो करते हो एक्सरसाइज में 840 कैलोरीज पर आवर कम होता है इससे, और जंपिंग जो होता है 1000 कैलोरीज पर आवर. इट इज अप टू यू व्हाट यू डू, हाउ योर बॉडी इज, यू कैन see according to it. Do you know for the first 15 minutes of your workout your body burns sugar and carbohydrates. sugar and carbs यानी पहले 15 मिनट में आपके बॉडी में शुगर और कार्बोहाइड्रेट से पहले वो बर्न होते हैं. At 30 minutes your body enters the fat burning zone. अब इसके बाद 30 मिनट के बाद में फैट बर्निंग जोन आपके आधे घंटे के बाद चालू होता है फैट बर्न होना. तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमने 5 मिनट कर लिया और काम हमारा हो गया. 30 मिनट के बाद आपके फैट बर्न्स चालू होते हैं, इसलिए कीप पुशिंग, आप करते जाइए घंटा 1.5 घंटा. Now, recommendation level of physical activity. The WHO has recommended level of physical activity that are divided on the basis of age groups. That is 5 to 17 years, 18 to 64 years, and 65 above years. ये कैसे करना चाहिए? ये age 5 to 17 years for the children and young people of this age group. Physical activity includes play sports, transportation, recreation, physical education, or planned exercises in the context of family, school, and community activities. In order to improve cardiorespiratory and muscular fitness, bone health, cardiovascular, and metabolic health biomarkers, and reduce symptoms and anxiety, depression, the following are recommended. ये सारी चीजें 5 से 17 साल के ग्रुप वाले बच्चे होते हैं उनके लिए प्ले स्पोर्ट्स वगैरह, आजकल स्कूल में भी सारी एक्टिविटी इसलिए रखी जाती हैं ताकि बच्चे एक्टिव रहें. सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं होता, यू हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइजेस ऑल्सो. तो बच्चों के लिए ये सारी चीजें रखी जाती है. चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एज 5 to 17 years old should accumulate at least 60 minutes of the moderate to vigorous intensity physical activity daily. अब देखिए आप, ये मैं बता रही तो 5 से 17 साल, तो आप लोग ये 17 होंगे, 18 होंगे, जो भी होंगे, तो आप लोगों ने भी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि इसे बुढ़े होने के बाद ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, अभी से आप लोग ने एक्सरसाइजेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए. 18 to 64 भी हैं, 18 से 20 साल वाले भी हैं, 60 साल तक के भी सबको एक्सरसाइजेस सब बताइए. द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ दिस एज ग्रुप आर ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज वॉकिंग और साइकिलिंग, ऑक्यूपेशनल जो आपका है वर्क में आप जो कर सकते हैं, हाउस होल्ड चोर्स, स्पोर्ट्स और प्लान्ड एक्सरसाइजेस in the context of daily family and community activities. In order to improve cardiorespiratory and muscular fitness, bone health, and reduce the risk of NCDs and the depressions, and the following are recommended. कौन से इनके लिए 18 से 64 साल वाले बच्चों के लिए should do at least 150 minutes, कम से कम 150 मिनट करने चाहिए. मतलब 2 घंटे, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 120 मिनट का 2 घंटा होता है, तो 2 घंटे से ऊपर ही आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए. समझ में आई आपको बात? देख लीजिए. ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द वीक मतलब हफ्ते भर रोज, और डू एटलीस्ट 75 मिनट्स ऑफ द विग्रस इंटेंसिटी, या तो 75 मिनट मतलब 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 75 मिनट मिनिमम आपने करना चाहिए. विग्रस मतलब ज्यादा, जो यंग है उन लोग ने ज्यादा, विग्रस मतलब ज्यादा तेज एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं थ्रू द वीक, or an equivalent combination of moderate and vigorous intensity activity. Aerobic activity should be performed in bouts of at least 10 minutes duration. हर 10 मिनट के गैप आपको उसका शेड्यूल बांधना चाहिए. 10 मिनट या 10 मिनट या 10 मिनट, या हर चीज का अलग अलग आप कर सकते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस के लिए. एक्सरसाइजेस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स ऑल्सो, नहीं तो ऐसा है कि प्रेग्नेंट हुए तो आराम से बैठे रहते, कुछ नहीं करते, 9 महीने बैठे बैठे और अपना वजन पूरा बढ़ा लेते हैं. तो उसके लिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी एक्सरसाइजेस होती हैं. अगर आपके फैमिली में कोई आपकी भाभी है, मासी है, काकी है, चाची है, जो भी हैं, उन लोग अगर ये, तो आप उनको बता सकते हैं, सिस्टर्स हैं तो उनको बता सकते हैं कि लाइट हाउस होल्ड वर्क कैन बी डन. ऐसा नहीं है कि बेड रेस्ट पूरे 9 महीने. एक्सेसिव फिजिकल लेबर टू बी अवॉइडेड, बहुत एक्सेसिव लेबर नहीं, एक्सेसिव वर्क नहीं करना जिससे उनको तकलीफ ना हो. डांस थेरेपी इंस्पायर एम्शन, रिड्यूसेस स्ट्रेस, कीप बॉडी सप्लाई, लोअर सीरम कोलेस्ट्रॉल, अवॉइड डिप्रेशन, स्ट्रेंथन बॉडी, रिलैक्सेस माइंड. जितने भी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, जो भी प्रेग्नेंट वाली लेडीज हैं अगर वो करती हैं, तो उनका रिलैक्स माइंड रहता है, स्ट्रेस रिलीज होता है और वो हेल्थी रहते हैं. देयर आर सम टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स. ये आपको एक्सरसाइजेस इसमें मैंने चार्ट में दिखा दिया. एज अबव ग्रुप 65 एंड अबव, 65 साल के ऊपर वाले. Adults age 65 years and above should do at least 150 minutes of moderate intensity aerobic physical activity throughout the week. 150 मिनट कम से कम उन्होंने रोज करना चाहिए, और do at least 75 minutes of vigorous intensity aerobic physical activity throughout the week. 1.5 घंटा, 2 घंटा ना करे, 1-1.25 घंटा तो मिनिमम करना ही चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए. Or an equivalent combination of moderate and vigorously intensity activity.
एरोबिक एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म इन बाउट्स एटलीस्ट 10 मिनट्स ड्यूरेशन। जो एरोबिक एक्सरसाइज आप करते हैं 10-10 मिनट के स्लॉट में उसको करिए। Adults of this age group with poor mobility should perform physical activity to enhance balance and prevail falls on 3 or more days per week। 3 से 4 दिन भी हफ्ते में कर सकते हैं। 65 साल के ऊपर वाले बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर उनके बस की नहीं है तो वो धीरे धीरे भी कर सकते हैं, हफ्ते में 3-4 दिन भी कर सकते हैं और अपना शेड्यूल करके बराबर करें। मसल वो आपके पेरेंट्स लोग के लिए है, 65 के अबव वाले हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन लोग एक ही जगह बैठे रहते हो, आप उनको एनकरेज कर सकते हो कि आप लोग भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको इसलिए बता जा रही है ताकि आप भी दूसरों को मोटिवेट करिए इन चीजों के लिए। आप तो खुद करिए ही, आपको देख के दूसरों ने सीखना चाहिए, दूसरों को भी आप अपने फैमिली में इन चीज के लिए एनकरेजमेंट करिए। Muscle strengthening activity should be done involving major muscle groups for 2 or more days a week. When adults of this age group cannot do the recommended amounts of physical activity due to health conditions, they should be as physically active as their abilities and conditions allow. जो adults है, मतलब सबने ये स्टैंडिंग एक्सरसाइज, मसल स्टैंडिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए, डन इन्वॉल्विंग मेजर मसल्स को, आपको ग्रुप्स को उसको बराबर करने के लिए 2 और मोर डेज अ वीक आपने मसल्स एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आप अपने हफ्ते भर को आप शेड्यूल कर सकते हैं, मैं 2 दिन एरोबिक, 2 दिन आपका जिम वाला, 2 दिन है, मतलब किस ढंग से आपको करना है। When adult of this group age cannot do recommended amount of physical activity due to health conditions, 64 साल से ऊपर वाले हो गए, अगर हेल्थ कंडीशंस है, उनको हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वो ज्यादा भारी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, तो दे शुड बी फिजिकली एक्टिव एज देयर एबिलिटी एंड कंडीशंस अलाउ। वो फिजिकली एक्टिव होना चाहिए अपना काम करने के लिए। ये एक्सरसाइजेस हैं बड़े लोगों के लिए, 64 साल के ऊपर वाले, 60 साल के ऊपर वाले, जो उन लोग काम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। Now last 10 minutes are left. If you have any question answers, you can ask me. Stop share कर दो, शेयरिंग मैं बंद कर दूं आपका, यार। Any questions? Last 10 minutes left. मैंने आपको आज एक्सरसाइज के बारे में बताया, फिजिकल एक्सरसाइजेस हमने कैसे करनी चाहिए, एरोबिक होती है, एनारोबिक एक्सरसाइजेस होती है, बैलेंसिंग होती है, ये सारी एक्सरसाइजेस आप लोग कर सकते हैं। आप लोग दूसरों को भी एनकरेज कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, आप ग्रुप बनाकर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सुबह उठ के, रोज सुबह से। वरना आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं ना, पूरा समय दे आर जस्ट बिजी ऑन देयर मोबाइल, सारा रात मोबाइल देखते हैं, तो सुबह से नींद ही नहीं खुलती है, फिर सारा दिन सोते पड़े रहते हैं, तो लेजीनेस हो जाते हैं, है ना। तो आप लोग के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप लोग के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं होती, वो जोश नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है हमें फिजिकल एक्सरसाइजेस करने के लिए। इफ यू वांट टू बी हेल्दी, यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेस। ठीक है मैम, एक्सरसाइज तो डेली चल रही है जी। हाँ जी, डेली बहुत अच्छा है बेटा, कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है ना, करते रहना चाहिए। दोनों टाइम चलिए, सुबह शाम दोनों। बहुत अच्छा, वेरी गुड, करना चाहिए। दूसरों को भी मोटिवेट करिए, दूसरे लोगों ने भी करना चाहिए, सबने करना चाहिए आप लोग। यस मैम। मैम, आपकी रीडिंग की स्पीड बहुत तेज है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस मैम। स्पीड मैम थोड़ी कम कीजिए अपनी। ओके, मैं थोड़ा धीरे, वो एक्चुअली हमारे पास रहता है 40 मिनट, उसमें हमको पूरी पीपीटीज, मेरा काम होता है कि समझा के पूरा कर दूं, वहां तक एक बार पहुंच जाओ, फिर आपको कुछ और नहीं समझा तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी। और मैं कल से धीरा करूंगी, थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई क्वेश्चन? समझ में आया आप लोगों को? कौन सी एक्सरसाइजेस बताई इसमें मैंने, बताओ एरोबिक टाइप ऑफ। हाँ, एरोबिक बताया, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, और बैलेंस वाली बताई, वेरी गुड। और